It's often said that a picture is worth 1,000 words. And I'm just going to put a picture on your screens. Just take a look at this picture and take a look at this picture very closely. Let's put that out, please. The controversial Wrestling Federation of India held their elections today. And guess who won? From the looks of it, at least from the looks of this picture, it was BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh, the man the Delhi police says never missed an opportunity to harass women wrestlers. I'm not saying this. This is in the charge sheet of the Delhi police against him. Several of these women wrestlers had hit the roads in Delhi asking for the WFI chief to be sacked for stalking, molesting and harassing them. Now, technically, Mr. Bhushan hasn't won the WFI election because he was barred from contesting them. But his business partner, Sanjay Singh, the man on the right, has won the elections. This, wrestlers say, is backstabbing by the sports ministry, by the government of India, because the sports ministry had promised them, that is the protesting wrestlers, that no close aide of the accused MP would be allowed to contest. Ladies and gentlemen, such was the arrogance on display today that Brij Bhushan Sharan Singh called women wrestlers who spoke against him a grahan on wrestling and said that his stranglehold over Indian wrestling will never wane. This is an MP accused of molesting India's Olympians. It's medal-winning wrestlers. He's completely secure in the knowledge that no one can touch him. He has won his bout against the women wrestlers, at least round one. Sakshi Malik, a multiple medal winner for India, says she's giving up wrestling. First, listen in to the man the system protected and encouraged. It's a telling tale of power and gender dynamics. देखिए, 11 महीने का कुश्ती पर ग्रहण लगा था। आज ये ग्रहण 11 महीने 3 दिन के बाद समाप्त हो गया और कुश्ती ऊंचाई पर गई थी तो पहलवानों की बदौलत गई थी। पहलवान थोड़ा सा हतोत्साहित थे, लेकिन वो पहलवान करंट में आने में उनको देर नहीं लगेगा और 10 दिन के अंदर माहौल जो है कुश्ती का फिर बदल जाएगा और फिर हम ओलंपिक में वही प्रदर्शन करेंगे जो देश हमसे चाहता है। आज हिंदुस्तान के लगभग हर अखाड़े पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सारे अखाड़ों पर ऐसे ही पटाखे दग रहे हैं। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता थी, उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है, लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा और जो चीज़ें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो खुले में होगा। ना तो पहले रेसलिंग फेडरेशन में कोई भी एक लड़की थी, ना कोई भी आगे लड़की है। मैं हमारे आने वाले रेसलर से कहना चाहती हूँ कि आने वाली 2 या 4 पीढ़ियाँ तैयार रही है शोषण के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि भाई बेटियों को न्याय मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पूरे तंत्र ने काम किया है, बेटियों को तोड़ने का काम अभी भी चल रहा है। आज WFI के चुनाव देख लिया आपने, उसी का आदमी बना है। आज तो WFI के चुनाव में किया है, धीरे धीरे उसको कोर्ट से भी बरी करवा देंगे, मुझे लग रहा है जो। लेकिन फिर भी हमें भरोसा है न्यायपालिका पर, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे देश में न्याय बचा है वो सिर्फ न्यायपालिका में ही बचा है। तो हमें अब भी उससे उम्मीद है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से।
Let me introduce my guest to you this evening. Rakesh Singh is a coach. He's also the General Secretary of the Haryana Wrestling Association, someone who from day one has been backing Brij Bhushan Sharan Singh. I thank you for coming to the studio. Mukul is a former international wrestler. He's joining us on the broadcast, again in the studio. Dr. Sunita Godara is an Asian marathon champion, joining us on the broadcast, and Sanjay Jha is an author joining us on the broadcast as well. Ladies and gentlemen, I'm going to go to Sanjay Jha first because he has another show to do at 8:30. So let me quickly go and get his first comments. Mr. Sanjay Jha, you've heard Brij Bhushan Sharan Singh. If you looked at the picture, you would think it's him who has won the Wrestling Federation of India's presidentship, not the man who has, not Sanjay Singh. He's saying, जिसको संदेश लेना है ले ले. दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा. और जो 11 महीने से ग्रहण लगा हुआ था इंडियन रेसलिंग पे, वो आज खत्म होता है. Shreya, I think it is a day of a monumental mammoth shame for every Indian who has a heart and a conscience. I think if Indians look beyond their political ideology, I think they will understand that what has happened is disgusting, it's shameful, and I'm actually mortified. These are not just women champion wrestlers at the Olympic level, they are women. In a country that is so patriarchal and misogynist, and we know what women go through. I understand that, even you have been on a public show, somebody commented on what you wore. So that's the reality of our lives, right? And what a shame, and I think, in my opinion, shock this is really the manifestation of political arrogance here. Can you see the hubris that, end of day, the kalank is over and now we are in power. But I want to say something that some people are not going to like. But Shreya, I think it's time we made some uncomfortable truths. I have been reading a lot of cephalogist reports after the election, the results that came out recently. And your channel dedicated a lot of time fighting for the women wrestlers, all of them. You also spent a lot of time and that horrible gang rape that happened to an unfortunate woman in Manipur. But I've been reading a lot of reports that apparently, and I may be wrong, but a large section of women voters in India, fully aware of Manipur, women wrestlers, support the BJP. Well, I think it's time people look into their conscience. I'm not trying to make a political statement. All political parties have some extremely dubious characters. All political parties have made controversial statements. But I do want to tell you this, that I think, irrespective of gender, but definitely, I think people should look within. Because when you endorse this, this is what you're going to get. I'm telling you this, the reason why you'll find more brazenness is because these election wins boost the belief in political parties that they can get away with murder, which is why in Parliament 140 MPs are suspended because the government and its spokesperson say, we have just got a mandate, so we'll do what we want. So I think what you're seeing, in short, is a very ugly exhibition of political hubris, and we citizens and voters are responsible for feeding it. Sunita Godara, as a woman athlete, there is one, I think it was Vinesh who called this wrestling's darkest hour. Is this Indian sports' darkest hour? Because the sports ministry of this country, the government of India, had officially on record assured wrestlers that no one close to Brij Bhushan Sharan Singh will contest these elections. Turns out that the man who has won the elections is Brij Bhushan Sharan Singh's business partner. You are right. This is the darkest day and very shameful, If ministry was already, they assured these girls, then, it's as per the sports law, as per the ethics commission, as per the ethics panel, anybody who is doing professional sports misconduct should be barred from sports. Then how come Brij Bhushan standing there and garlanded with, his business partner has won, but he is getting those garlands and all. It means the rule is not followed properly. The ethics commission, the sports law says, anybody who is doing misconduct or anybody who has got allegations of sexual harassment or any kind of misconduct, that person should be barred from sports. Means that person should not be seen in the sports arena. And look at this. So when
the government of the day on the misconduct, on the misbehavior, you know, on that ethics committee decisions, they can bar 140 MPs, then why can't they do the same thing following the same rules of sports law, a sports ethics commission, which they have in writing on papers, activate that? And what IOA is doing, It's mind-boggling. Indian Olympic It's Association is the mind-boggling. supreme power of all federations. It's mind-boggling to me why the BJP continues to protect. Nobody Brijbhushan is taking Sharan Singh. any action, you Rakesh know. Singh ji. हाँ, एक मिनट सुनीता जी, let राकेश सिंह जी come. राकेश सिंह जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बोला था कि किसी भी बृजभूषण शरण सिंह के किसी भी एड को, क्लोज एड को हम नहीं लड़ने देंगे इलेक्शन। ये तो अश्योरेंस थी या नहीं थी? नहीं, ऐसा जो मेंबर हैं वही तो इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी तो एक मेंबर है हमारे, तो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन बात क्या हुई? लेकिन क्या इन हुई? लोगों का बृजभूषण नहीं, बात क्या हुई थी कि कोई भी क्लोज एड नहीं लड़ेगा इलेक्शन। ये बृजभूषण के जितने जानने वाले सारे देश छोड़ के चले जाएं, तो देश छोड़ के चले। बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है और बिजनेस पार्टनर हो। तो लग रहा है कि संजय सिंह ने इलेक्शन जीता है या बृजभूषण शरण सिंह ने जीता है, ये बता दीजिए। चलिए इलेक्शन आज जो इनकी महिला जो थी कंटेस्ट कर रही थी, 7 वोट मिले उसको, और दुनिया के सामने जो आपका न्यूज चैनल भी वही था, तो 7 वोट मिले, संजय सिंह को 40 मिले। तो इसमें बृजभूषण की लड़ाई इनकी थी या सेक्सुअल हरासमेंट की लड़ाई थी या इन्हें अपना पद चाहिए था? ये अब आज ये नाटक जो कर रहे थे कि हमने कुश्ती से रिजाइन कर दिया, इनके तीनों के वेट में 5-5, 6-6 पहलवान ऐसे हैं जो ये डिस्ट्रिक्ट जीत के दिखा दूं, मैं मान जाऊंगा इनको। ये कुश्ती पहले ही छोड़ चुके थे, ये तो राजनीति करने आए थे, ये कांग्रेस के हत्थे चढ़े हुए हैं, इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, उसको हम सलूट करते हैं। लेकिन इसने हमारे इन तीनों चारों पहलवानों ने, ये एक गैंग है और ये कांग्रेस के हाथे चढ़ गए, ये राजनीति करना चाहते हैं, पहलवानी से बहुत दूर जा चुकी है। और इन्होंने अभी ये जो कह रहे हैं हमारे कुश्ती से रिजाइन कर दिया, इनको पहलवान छुड़वा देंगे, गद्दे पर जो जीतेगा वो सिकंदर, ये हार चुके हैं। ये अपना कुश्ती तो बहुत पहले छोड़ चुके थे, राजनीति करनी थी इन लोगों ने। तो ये आए थे किसी एक बहुत बड़े व्यापारी से और उनसे कुछ साठ-गांठ करके इन्होंने कहा था भाई बृजभूषण को हटा के हम पद ले लेंगे, और इनको शिकार बना दिया गया, ये तो मोहरा बनाया गया। ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है कांग्रेस की, और हमारे जाटों को इतना कलंकित कर दिया, हमारे उपराष्ट्रपति को इस कांग्रेस। मैं तो जाटों के लिए कहूंगा कि उठो, जागो और लड़ाई लड़ो। और ये देखिए, लड़ाई तो बाद में लड़ लीजिएगा, अभी आप सवाल मेरा सुन लीजिए। मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगी क्योंकि बहुत लड़ाई जो है वो हो चुकी है, और जितने लोग इस स्टोरी को ट्रैक कर रहे थे वो भी हताश हो चुके हैं। आप मुझे बता, चलिए आप इनको कुछ भी बोल दीजिए। आप इन विमेन रेसलर्स को कह रहे हैं कांग्रेस का गैंग है, ये एक साजिश थी, ये यहाँ पॉलिटिक्स करने। आप जो सब बोल रहे हैं वो सब भी अगर मैं मानूं सही, वो तो सीरियस चार्जेस है ना, वो मैं नहीं बोल रही हूँ बाय द वे, वो दिल्ली का एक कोर्ट कह रहा है, और दिल्ली की पुलिस की चार्जशीट में ये बोला गया है कि ये जो महाशय आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन में, एक इन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी विमेन रेसलर्स को हैरेस, मोलेस्ट या स्टॉक करने की। इंसिडेंट्स पूरे उनकी चार्जशीट में लगे हुए हैं। तो बजरंग पूनिया को और साक्षी मलिक को और विनेश फोगाट को, और जो उसकी मिसेज आज जो मुंबई में डांस कर रही है उसको ही जज बना दो, वही फैसला कर देंगे। यानी कि हमारी न्यायपालिका कुछ नहीं है, जो ये कहें वो सच बोल रहे हैं। हमारी हजारों लड़कियों को इन्होंने कलंकित किया। अरे जो न्यायपालिका विनेश ने बोला कि हजारों लड़कियों को उसने बृजभूषण ने मतलब हताश और परेशान किया, तो हमारी बेटियों पे आज हमारी 5% लड़कियां कुश्ती छोड़ के चली गई हैं, केवल इस बात से कि हजारों लड़कियां। अच्छा, तो वो लड़कियां आप कह रहे हैं मुझे, राकेश जी जरा समझिए एक बात, आप जो कह रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं, मुकुल जी आपको आना, आप भी आ जाइएगा जरा इस कॉन्वर्सेशन में। आप मुझे कह रहे हैं, और मतलब ये पूरी देश की जनता सुन रही है, कि देश की लड़कियां कुश्ती छोड़ेंगी उन औरतों की वजह से जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद करके एक ऐसे आदमी के खिलाफ बात की जो उनको सेक्सुअली हैरेस कर रहा था। क्या करती है लड़कियां? चुपचाप बैठी रहती। केवल कभी भी अरे उन्हें झूठ 12 साल कौन लड़कियां आके बोलती हैं कि मेरे को सेक्सुअली हैरेस्ट किया? कौन लड़कियां आके बोलती हैं मुझको जबरदस्ती हक किया, और जब मैंने अपोज किया तो बोला ये तो मैंने पिता के समान किया? कौन लड़की आके बोलती है कि मेरी शर्ट उठा के मेरे स्टमक पे जबरदस्ती हाथ रखा गया है? इस देश में, और ये तो मैं आपको कम इंसिडेंट्स बता रही हूँ। केस दर्ज करा रही है, उनका कौन क्या करेगा? कितने मुकदमे आपने देखे होंगे,
हनी ट्रैप हो रहे हैं, वो लड़कियां ही तो हैं, किसी की बहन बेटी में भी तो हैं। अब आप हनी ट्रैप पे आ गए। तो इन्होंने हनी ट्रैप है, ये भी ये आप कह रहे हैं हनी ट्रैप ये है। हनी ट्रैप करना चाहते थे। अच्छा। नेताजी को इन्होंने बदनाम करने की पूरी कोशिश की। न्यायपालिका में विश्वास है, न्यायपालिका जो करेगी जो हम एफआईआर सुनेंगे। में जो के नाम है, जो आए हैं, जो लिखा है, जो चार्ज शीट लगी है, क्या वो भी झूठी है क्या? ये किसके बारे में बात वो कर रहे कोर्ट में हैं? है, उस पर क्यों जाएं? जो मेडल लेकर आई है, जो महिला, जो पहली महिला कुश्ती मेडल लेकर आई है, साक्षी मलिक जी, आज आप जो कह रहे हो उसकी कुश्ती खत्म होगी, कुश्ती खत्म इन लोगों ने कर दी और आगे अभी तो 5% लड़कियां गई हैं, मैं क्या 100% लड़कियां जाएंगी गेम से? आप देख लेना, ऐसे डाकू बना दिए हैं ये। जो ब्रजभूषण ने, जो मतलब जो खेल मंत्री ने ये बोला था, उन्होंने वादा खिलाफी करी, इनको ये बोला था कि कोई भी उनका नजदीकी, उनका रिश्तेदार कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, ये इसका बिजनेस पार्टनर है। हमने तो शुरुआत से ही पता था कि ये चुनाव जीतेंगे और खेल मंत्री ने यह भी बोला था कि हम ये चुनाव वैसे करा रहे हैं, लेकिन आप एक महिला के नाम पहलवान दे दो कैंडिडेट। उन्होंने महिला कैंडिडेट दे दी। बोला हम दिखावटी वोट कर रहे हैं, लेकिन बनाएंगे आपको ही, और जितनी भी वोट दिलवानी होगी वे हम दिलवाएंगे। या तो खेल मंत्री जी ने वादा खिलाफी की है, और जो ये लड़कियां बैठी ना, जो अपना हक मांग रही है, ये मतलब कि बोलो हनी ट्रैप है, ये है मतलब शोषण को ना लगाना, कोई के नाम देश की के नाम मेडल की के लेकर आई लड़कियां, ओलंपियन लड़कियां राकेश जी, आज वो बोल रहे कि मेडल बॉम्बे में लेके आई हैं डांस करिए। आपके देश के अरे लिए और वे- मेरे वे देश के सेलिब्रिटी लिए। लोग हैं, वे कि नाम डांस करिए, क्या हो गया? अरे वो तो अपनी कला दिखाना, आप ऐसी बातें क्यों करते हो राजेश जी? ये बातें आपको शोभा देता है। बजरंग पूनिया देखो, ने बजरंग खुद- पूनिया देश का इतने मेडल लेकर आया है कि इतने सारे मेडल किसी के पास नहीं इसने होंगे। विशाल को क्यों नहीं जाने दिया? नहीं बगैर ट्रायल जाना चाहिए विशाल था, की आप क्यों नहीं जाने दिया? विशाल के लिए इन्होंने मना नहीं किया बिल्कुल भी। जो भी के नाम तुम्हारी कमेटी ने फैसला किया, राकेश वो जी, इन्होंने माना। दिनेश के बजरंग वजन में जो लड़की गई मेडल लेके आई, नहीं लेके बजरंग आई। ने उससे पहले ही बहुत पहले होना कि इनको हराने वाले 10-10 अखाड़े में लोग राकेश जी, इनके वेट एक में 10-10 लोग इनको हराने वाले ठहर एक रखे मिनट, हैं। एक मिनट। इनकी कुश्ती खत्म हो चुकी है। एक मिनट, इनकी कुश्ती खत्म हो ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो इस समय सवाल भी नहीं है ऑफ डिस्कशन। सवाल ये है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप हैं। वो आरोप जो हैं एक चार्जशीट में रखे गए हैं। दिल्ली पुलिस हैज फाउंड मेरिट इन दोज आरोप्स। वो आरोप को जस्टिफाई करने के लिए एविडेंस लगाया गया है। उसके बावजूद ये होता है राकेश जी, न्यायपालिका कौन पे छोड़ भेजेगा? दीजिए उस लड़ाई को। नहीं, न्यायपालिका पे तो छोड़ ही रखा है। आप बचा किस पे है? बीजेपी पे और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पे तो छोड़ भी नहीं सकते ना। ओवरसाइट कमेटी, दिल्ली पुलिस क्या बोल रही है हमको? आपकी एक ओवरसाइट कमेटी थी, मेरी कॉम जी थी उसकी हेड। दिल्ली पुलिस बोल रही है कि उस कमेटी ने भी बृजभूषण शरण सिंह को एग्जॉनरेट नहीं किया है। उसके जो डिटेल्स हैं वो पब्लिक कीजिए ना। क्यों नहीं कर रही है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उस उसके कमेटी डिटेल्स में पब्लिक? जो लड़कियों ने बयान दिए वो रिकॉर्डेड है। हाँ, जिन तो लड़कियों बताइए। ने कहा कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार बताइए। जाके उन्होंने कहा हमारे को छेड़ दिया। नहीं, नहीं, और बताइए। जिस दिन इंसिडेंट राकेश जी, बताइए। बृजभूषण दिल्ली में मौजूद नहीं थे। मेरी कॉम की जो कमेटी थी उसकी जो फाइंडिंग्स है वो आप बताइए ना। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्यों नहीं बता रही हमको? तो दिल्ली बताइए। पुलिस के सारे हैं ना वो तो। हाँ, दिल्ली पुलिस दे उनको ले गए। दिल्ली पुलिस के पास है, लेकिन पुलिस दिल्ली ने पुलिस कोर्ट को देना चाहिए। हाँ, दिल्ली पुलिस ने पुलिस कोर्ट को दिया और दिल्ली पुलिस ने बोला है कोर्ट को दैट कमिटी हैज नॉट एक्सोनरेटेड बृजभूषण शरण सिंह, यानी कि उनको क्लीन चिट नहीं दी है। क्या मतलब है इसका राकेश जी? एडहॉक कमेटी ने अपना पूरा काम किया। उसमें इसकी बहन खुद जज थी। उसके आगे भी अगर किसी ने झूठ बोला तो ये स्वयं जो ये एक गैंग है, जो फोगाट परिवार का गैंग है, इन्होंने फोगाट पूरे गोद पर कलंकित काम करने किया और हमारे जाटों को बदनाम करने का काम इन्होंने किया। हाँ। हमारे शर्म आती है कि ये जाटों की लड़की है। बृजभूषण संजय झा, would you want to come in here in case you still have the time and you're still with us on the show? Okay, we've lost his line. आप बोलना चाहेंगे कुछ? मतलब ये तो पूरी उल्टी ही बात कर रहे मैं हैं। यही बोलना चाह रहा हूँ कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। हाँ। ठीक है ना। अभी जो न्यायपालिका पर तो हमने भरोसा है, लेकिन वो भी सब खरीद लिए जाएंगे। सब लड़कियों को के नाम है वहाँ डरा धमका के वो वहां से भी बरी हो जाएगा। फिर ये अपने आप को दिखाएंगे, देखो ये गलत थे और हम ठीक है, ये पाक साफ है। ये जो बैठे थे धरने पे, ये कुश्तियों को आए थे साफ करने, पाक साफ करने, और ये आए हैं ना अध्यक्ष बन गए। अब ये साफ कर देंगे कुश्ती को बिल्कुल। आप आज से ही देख लेना, इनकी गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। जिसको चाहेंगे उसको बाहर भेजेंगे, जिस कोच को बोलेंगे कि ना उसको रखेंगे, और जो नहीं मानेगा उसका शोषण करेंगे। उसमें चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, इतना मतलब तंग कर देंगे, क्योंकि इन्होंने तो सोच रखा है कि हम आ गए हैं, अब हमारा दम देखना। ये अपना दम दिखाएंगे। जैसे साक्षी ने के नाम अभी कुश्ती छोड़ दी, अलविदा कह दिया, तो मैं ये कहता हूं जो ये फेडरेशन का भी अध्यक्ष बना है, इन्होंने भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देगा, अगर फिर क्या नाम है, नहीं तो इस्तीफा हमने फिर बैठना पड़ेगा धरने पे।
क्योंकि ये लंबी लड़ाई चलेगी अब की बात। नहीं, लड़कियों ने तो साफ बोल दिया है, अब आगे वाली आगे जनरेशन हैं वो लड़ेंगी, हमारी लड़ाई खत्म। वो तो लड़कियां साफ बोली हैं। डॉक्टर सुनीता गोदारा, as you listen to what is being said here in the studio, to me it's stunning. To me it's stunning that Rakesh ji here is saying it is that these girls who have ensured that women will not come into wrestling and girls will not come into wrestling. जो नाम बदनाम किया है इंडियन रेसलिंग का, बृजभूषण शरण सिंह ने बदनाम नहीं किया है, इन लड़कियों ने किया है जो देश के लिए मेडल लेके आई हैं। और इतने धड़ेले से वो बोल रहे हैं तो उनका भी कुछ कॉन्फिडेंस है कि वो एक रूलिंग पार्टी से आते हैं, पूरी बैकिंग है बीजेपी की। बीजेपी ने कुछ नहीं किया उनके खिलाफ, उनको एमपी, वो तो एमपी तक बने हुए हैं, उनको ये तक परमिशन दे दी कि आप अपने प्रॉक्सी से लड़ाई करवा लीजिए। डॉक्टर सुनीता गोदारा, आई वांट टू आस्क यू दैट देयर आर मेनी पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस स्टोरी राइट नाउ एंड दे आर वाचिंग व्हाट हैज हैपेंड टुडे एट द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. How many parents do you think will send their daughters for wrestling in an environment where the WFI president is an alleged molester and being protected by the system? Those who have sense, first of all, seeing this man Brajbhushan, the way he's saying मेरा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, such people should not be in sports. Secondly, Rakesh Singh is saying कि साक्षी का खत्म हो गया है sports. He does not know, he has no idea what is a sports. First you do the performance and then you start maybe academy, sports promotion, management. There are so many things. Like I was not in good books in federation, but I won my Asian medal in '92. But still, I'm promoting marathon, and I'm marathon consultant. I'm organizing marathon. I'm giving consultation to marathons. So sports never finishes, you know. The person who is champion is always a champion. How can they say कि साक्षी मलिक का खत्म हो गया है कुश्ती? It means they have no idea कि sports में क्या क्या हो सकता था. अब साक्षी मलिक, when she's hanging her boots, it means we are losing one dynamic personality from wrestling who could have done so much for wrestling sports. But because of these people, because of the misconduct or say what you call mess of the system, Sakshi Malik type of Olympic medalist is leaving the sports, which is really, really very bad for sports, for all. And those parents are watching, you know, they'll say, इस वाले आदमी के अंडर तो नहीं भेजनी अपनी लड़की. Those who have sense. Otherwise, sports ministry has to take action. When they can take action in parliament, why can't they take action in sports? कुछ नहीं है, ये सब नाटक है, ड्रामा है. 11 महीने से कुश्ती जीरो कर दी इन लोगों ने. राकेश जी, you don't know about the sports. कलंकित किसने किया? It is managing the sport. It is promoting the sports. आपका कहना है शोषण होते रहना. अरे कुछ नहीं है, शोषण करते रहो. इनको पता ही नहीं है कि हमें कुछ मत बोलो. कुश्ती को हैंग कर रखा है. राकेश जी, आपने कभी कुश्ती खेली है तो आप अभी फेडरेशन में बैठे हैं तो ये क्या है? ये स्पोर्ट्स नहीं है क्या? उसकी जो है ना, अरे इनको पता ही नहीं ये सब गैंग है, कुछ नहीं है. ओनली परफॉर्मेंस. ठीक है सुनीता जी. अरे सुनीता जी ठीक है. मैं आपको नहीं पता, आप तो ना सुनीता जी कांग्रेस की वर्कर हैं, कांग्रेस की तरफ से बोलते हैं. ये कांग्रेस का जो है ना एक गेम था, कांग्रेस फ्लॉप हो चुकी है. देखिए, ये बीजेपी पे कलंक कितना करे किसी बात. नहीं राकेश जी, एक मिनट. सुनीता जी एक मिनट. सुनीता जी एक मिनट रुक जाइए. सीट लगी, अब कोर्ट में. सुनीता जी गिव मी अ मिनट. न्यायपालिका पर राकेश जी, कुछ नहीं होगा. राकेश जी, नहीं वो तो किसी के कहने से अब कुछ नहीं होता है. अब सही और गलत में भी फर्क अगर कोई ना कर पाए और कोई सिस्टम ना कर पाए तो वो सिस्टम पे कलंक है और किसी पे कलंक नहीं है. और ये कांग्रेस फ्लॉप हो ना हो उसकी बात नहीं है राकेश जी. कांग्रेस फ्लॉप होती रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. आप बार बार इन लड़कियों को बोल रहे हैं ये कांग्रेस का गैंग है. कौन सा इलेक्शन लड़ लिया भाई इन्होंने? कौन सी पार्टी के लिए इन लोगों ने जाके कैंपेनिंग कर दी? आप मुझे जरा बताइए. आप वाले खड़े आप पे शोषण होता है. कौन सी पार्टी नहीं आई? और हमेशा ही देखिए राकेश जी ने जो है राकेश जी का पूरा समर्थन किया, पूरा सपोर्ट किया. ऐसे समर्थन होता है. लॉन्च करा दी. हाँ. और अब 4 सीट लग गई. ऐसे समर्थन होता है. ये समर्थन होता है. ये गलती है क्या? अभी भी एक बीजेपी के सांसद को 26 साल की सजा हुई है. हाँ. उसको क्यों नहीं बचाया? ऐसे बीजेपी को क्यों बदनाम कर रहे हो? हाँ. बीजेपी इसमें कहीं नहीं है, इसमें तो इन लड़कियों का. अच्छा एक बात बताइए राकेश जी एक बात बताइए कि अगर कांग्रेस का एमपी होता बृजभूषण शरण सिंह, अभी आज से 10 महीने पहले उसको जेल में डाल दिया जाता.
ऐसा नहीं मैं है। गलत बोल रही हूँ? आज भी कांग्रेस गलत बोल रही के हूँ? गलत बोल रही हूँ? MP पे मुकदमा दर्ज हुआ है 76 का। हाँ। किस पे? नवीन जिंदल पे। वो क्यों हो गया? राकेश जी, 2.5 साल से वो लड़की रेंग रही थी, हाँ। कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराया है। राकेश तो जी। बीजेपी इतनी मदद करती तो उसका मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया? वो भी कोर्ट ने करवाया है। राकेश जी, मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये सही और गलत की बात है। ये और हमारी बेटियों को कलंकित करने का इन लोगों ने काम किया। हाँ। और साक्षी मलिक ने और विनेश ने हमारी हजारों बेटियों को कलंकित करने का काम किया। अनदर 5 राकेश जी, 10 लड़की सोच तो होती, लीजिए। 1000 लड़कियां। सोच तो लीजिए क्या बोल आप रहे हैं। सोचो ना, 1000 लड़कियों का क्या बोल सकते हैं? सोच तो लीजिए क्या बोल रहे हैं। 365 दिन होते हैं साल में, मतलब सोच वो तो रोज लीजिए। 10 लड़कियों का शोषण करता था। सोच तो लीजिए आप क्या बोल मैं रहे ये हैं। बोल रहा दिल्ली हूं, पुलिस की इनको- चार्जशीट बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं भी ये बोल रहा दिल्ली हूं, पुलिस की उस चार्जशीट चार्जशीट को मैंने कह रही 5 पन्ने से पढ़ा है। पढ़ा है ना? हाँ। लिखा है ना उसमें that he didn't miss an opportunity to harass, stalk और molest a woman। अरे मैडम, बोला है ना? आपके जो इन्होंने जो हमारे को जो ना जब राकेश जी तो बता क्या है कि आपने भी देखा होगा, सारी डिबेट में एक ही चीज देखी होगी, कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी बार बार लेकर आते हैं। ठीक है, अगर मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर बीजेपी से अब की बार ब्रजभूषण जी सांसद बनकर आ गए और उनकी सरकार आ गई तो इन तीनों को यहाँ दिखाई नहीं देंगे, ना इनकी नौकरी रहेगी, ना इनका परिवार रहेगा। मुझे इस बात का तो पक्का यकीन हो गया है, क्योंकि जो और बीजेपी के जो शोषण करके जो अंदर गए हैं ना जेल में, वो इतना दबंग आदमी नहीं होगा जितना दबंग आदमी ब्रजभूषण जी। ब्रजभूषण 7 बार का उससे है ना, सांसद है, उसका बेटा जो 2 बार है का ना, विधायक है, अमित शाह जी करोड़ों भी, लोग उसके फॉलोअर हमारे हैं, गृह मंत्री दोबारा भी, से जीतेगा, हमारे गृह और मंत्री भी उससे है ना 10 लाख वोटों से जो बुला के ब्रजभूषण बात जीत करते के हैं, आएगा। उसको ऑर्डर नहीं देते। अरे जनता उसके साथ और खड़ी है, योगी जी भी हमने जनता वहां प्यार भी करती है यकीन था। उससे। लेकिन जो कुश्ती आपके में कहने से ऐसा ब्रजभूषण क्या नहीं मिला? जाएगा। नहीं, कुश्ती में उसको क्या दिख रहा है 7 बार के MP ने कि हाँ तू चुप क्या रहे, और तुम्हारे जैसे और लोगों को चिपका दूं कुश्ती और को मेरे बिल्कुल आसमान खास पे चढ़ा लोग दिया रहे। ब्रजभूषण अब ने। वो दूसरा संजय सिंह बना दिया, अब और बढ़िया हो गया भाई। अब तो सीधा डायरेक्ट उस पर कोई आएगा ही नहीं केस वगैरह। अब संजय सिंह आएगा, संजय सिंह बोलेगा भी इसको भेजना है, ये निजारी लड़की, अच्छा ये निजारी, अच्छा ठीक है। 11 महीने से कोई नेशनल हुआ क्या? 11 महीने से जिंदगी उसको खराब तो बर्बाद करके रख दिया। किसने बर्बाद किया? अरे केवल 11 साल डॉक्टर से ने 11 और महीने में छोड़ इन्होंने दो। किया है। कुश्ती को उठाने वाला ब्रजभूषण सर नहीं था। आप इस बात को मानो या मत और किसने मानो, उठा दिया? जो पहलवान थे उन्होंने उठाया था, और ये समय की मांग है जो वहां फंड आ रहा है कुश्ती में, और कुछ भी नहीं है। इससे पहले GS मंडेरी भी जी थे, वे IS थे, MS मलिक थे, वो DGP थे, उससे पहले सारे रहे अफसर। और पहली बार एक गुंडे को चार्ज मिला है यहाँ कुश्ती का, ब्रजभूषण शरण जो ने पूरा अपने पैसा आ घर से गया है। पैसे लगाए हैं, ठीक है, पहलवानों को उससे अपनी जेब से पहले पैसे कुश्ती में दिए हैं। बिल्कुल भी पैसा नहीं 5 था। रुपए ब्रजभूषण ने सुशील नहीं आज तक पहलवान कुश्ती का जो यूज किया। पहली बार किराया भी ओलंपिक में अपने घर से मेडल लेके लगाता आया है ब्रजभूषण। 50 साल में। उसके बाद कुश्ती राकेश चली जी। थी, जब कुश्ती का नाम हुआ था, ठीक है। बेवजह कोई श्रेय ना ले कुश्ती का, उसने ठीक है। चढ़ाई से चढ़ाई, ठीक है। पहलवानों ने ठीक कुश्ती है। चढ़ाई, ठीक है। उनके घर वालों ने मेहनत करवाई, उन्होंने डाइट दी, उन्होंने खुराक दी, वे अखाड़े में पहलवानी करके आए। मेडल आने के बाद में तुम फंड देते, उससे पहले फंड नहीं देते। Correct. बेवजह एक यहाँ कंधे में, मतलब जब उठाओ एयरपोर्ट पर जाकर, कोई खेल मंत्री जा रहा है, कोई ये जा रहा है। अरे जब ये तुम आप कि हम जाट की बात कर रहे हो, ये जाट नहीं थे क्या? कौन है? 750 के साथ जाट नहीं थे, सादत दे दी, वे नहीं थे क्या? ना अकेला यही जाट है क्या? अरे जाट की बात थोड़ी, आप कब जाट के लिए आते हो, कब हरियाणा के लिए आते हो, कभी कल कांग्रेस हमारे की, जाटों को बीजेपी। कलंकित करने का भाई काम किया। आपको आज हमारे उपराष्ट्रपति इनाम को मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं? बता दूंगा, ये लड़कियां क्या हैं? मिल जाएगा, हमारे आपको इनाम मिल उपराष्ट्रपति के जाएगा। बारे में क्या बोल रहे हैं? हमारे जाटों को शर्म आनी चाहिए, नहीं, जो उनके खिलाफ बोलते भी नहीं खिलाड़ियों के लिए है। बोलो। हमारे को बदनाम कर दिया पूरा। आप मत बोलो, आप आप- खिलाड़ियों के लिए बोलो बस। आप उपराष्ट्रपति की बात नहीं करें, उनके लिए बहुत लोग बात कर रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का काम है अपने रेसलर्स को प्रोटेक्ट करना। आप उनको प्रोटेक्ट करने की जगह उनका शोषण कर रहे हैं। कुश्ती बहुत शानदार चलेगी। चलिए, देखेंगे। 28, 29, 30 को चलिए, ठीक फिर है। दोबारा से नेशनल करा रहे हैं। ठीक है, चलिए राकेश जी, वी लीव इट देयर फॉर द मोमेंट। आपसे हम लोग अग्रीमेंट में बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपने आया और आपने अपनी बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। वी हैव सीन द मैन्स एरोगेंस, totally disgusting. Is that someone who should be running the Wrestling Federation of India? A man who has been accused, ladies and gentlemen, of India's Olympians of harassing, stalking and molesting them. But it is what it is. This is what the power dynamic in this country is all about. We'll leave it there for the moment. Thank you. Thank you, Mukesh ji, for coming in. Rakesh ji, thank you very much. And Sunita ji, thank you very much for joining us on the broadcast as well. On that note, I'm slipping into a quick break on the show. There's more on the other side. Do stay with us.